معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الفرقان کی آیت نمبر 35 سے 77 تک کا مطالعہ کریں گے، اور اس کے ساتھ ہی اس سورت کا مطالعہ بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ جیسے پہلے اتھارٹی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی قائم کی اللہ رب العزت نے، اسی طرح اس حصے میں انبیاء اور رسل کی مثالیں دے کر کہ جیسے پہلے قوموں کے انبیاء رسل کی اپنی اپنی قوموں پر اتھارٹی اور ان کی کامیابی ان کا مقدر بنی، اسی طرح یہ کفار جو رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کی بھی تباہی مقدر ہے، اور یہ اتھارٹی آپ کی ہی قائم ہونی ہے۔ مطالعہ شروع کرنے سے پہلے چند آیات کی تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَىٰ قَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَاهُمْ تَدْمِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ اب آیت نمبر 35 سے 77 تک تفسیر النور۔ یہاں جیسے میں نے پہلے عرض کیا، تاریخی حوالہ جات کا ذکر ہے، اور مبارک ہے اللہ رب العزت کا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب عطا کی تھی، اور ہم نے آپ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام کو آپ کا وزیر بنایا تھا، تاکہ بار رسالت میں موسیٰ علیہ السلام کا مددگار ہو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خواہش پہ ان کو نبی بنا دیا گیا تھا۔ تو ہم نے کہا کہ آپ علیہ السلام دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جو ہماری آیات کو جھٹلاتی ہے۔ جب وہ باز نہ آئے تو ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، یعنی یہ مسلسل قوم فرعون کی طرف بھیجا گیا مصر میں، تو یہ ان کا جو غرق کر دیا سمندر میں اللہ نے ان کو۔ اور اسی طرح نوح کی قوم کو بھی جب انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا، انہیں بھی غرق کر دیا اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا، یعنی نوح علیہ السلام کی قوم کو بھی سلام میں ہی غرق کیا، یعنی پانی میں ہی ان کی تباہی مقدر بنی، اور لوگوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ اور ہم نے ظالموں کے لیے دردناک عذاب بھی تیار کر رکھا ہے۔ اور قوم عاد اور قوم سمود اور کنویں والوں اور ان کے درمیان بہت سی اقوام کو بھی ہلاک کر دیا۔ اصحاب رس سے مراد، یعنی یہ کنویں والے، رس کنویں کو کہتے ہیں، قوم سمود کے عذاب سے بچ جانے والے لوگ جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لے آئے تھے، ان کی تعداد 4000 کے قریب بتائی جاتی ہے۔ یہ تھوڑی سی ہسٹری میں بیان کر رہا ہوں۔ جو حضرت صالح علیہ السلام یعنی اصحاب الرس کی یہ تاریخ ہے، جو یہ قوم سمود کے بچے کھچے لوگ تھے، 4000 کے قریب بتائی جاتی ہے، جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ مسلمان ہو گئے تھے، جو حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ حضرموت کے علاقے میں جا کر ایک کنویں کے قریب آباد ہو گئے تھے۔ اور حضرت صالح علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی نسل بھی بت پرستی کا شکار ہو گئی۔ اللہ نے ان کی اصلاح کے لیے ایک نبی کو بھی مبعوث بنایا، لیکن انہوں نے انہیں قتل کر کے کنویں میں پھینک دیا۔ ان پر اللہ کا عذاب آیا، اور جس کنویں پر ان کی گزر بسر تھی وہی اللہ نے خشک کر دیا۔ اس میں نبی کی ہلاک کر کے نبی کو پھینک دیا تھا، تو اللہ نے وہ جو جس پہ پانی جو مہیا کرتا تھا پورے ان افراد کو، وہ اللہ نے خوشی کر دیا، اور بھوک ننگ میں ہلاکت کا شکار ہو گئے، اور ان کی عمارتیں ویران ہو گئیں۔ حضرموت یمن کا ایک علاقہ ہے، اور ہر ایک قوم کو ہم نے اس کے لیے مثال بیان کی، لیکن سب متکبرین کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ اور یہ کفار مکہ اس بستی پر سے تجارت کے دوران گزرتے بھی ہیں، جس پر بری بارش برسائی گئی، یعنی برسات۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی بستی سدوم اور عمورہ، جن پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، اب وہ کھنڈرات ہیں جو شام کے تجارتی سفر کے دوران کفار مکہ کے راستے پر ہی آتی تھی۔ اب یہ کھنڈرات بھی سمندر میں غرق ہو چکے ہیں۔ سدوم اور عمورہ کی بستیاں، قوم لوط جو ہے ان کی جو بستیاں
तबाह कर दिया, उसको पथराव किया, पथराव पत्थर की बारिश बरसाई गई। तो क्या ये कुफार इसे देखते नहीं है, बल्कि उन्हें दोबारा उठने की उम्मीद नहीं है। यानी इन कुफार को पता ही नहीं है कि यकीन ही नहीं है कि दोबारा उठे जाएंगे, और यही इनकी गफलत की सबसे बड़ी वजह है। और ये कुफार जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखते हैं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये हैं जिन्हें अल्लाह ने रसूल बनाकर भेजा है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ठट्ठा मजाक करने के बावजूद हम पर अजाब नहीं आ रहा। अगर हम अपने मबूदों के वफादार ना होते तो करीब था कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें अपने मबूदों से गुमराह कर देते, अगर हम इन बुतों की इबादत पर साबित कदम ना रहते। जब वो कुफार अजाब को देखेंगे, अल्लाह जवाब दे रहा है उनको, तो जान जाएंगे कि कौन गुमराह था। क्या तुमने इसे देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को अपना माबूद बना लिया था? तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसे आदमी की जिम्मेदारी ले सकते हैं? ख्वाहिशात नफसानी की तकमील जिसमें हलाल और हराम की तमीज ना हो बहुत बड़ा शिरक है, क्योंकि दुनियावी मालो मता ही ऐसे इंसान का माबूद होता है। या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये ख्याल है कि इनमें अक्सर सुनते और समझते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो चुपायों की तरह बल्कि इससे भी बदतर लोग हैं। क्या आपने नहीं देखा अपने रब की तरफ कि वो किस तरह साया फैला देता है, और अगर वो चाहता तो इसे साया को ठहरा हुआ कर देता। साया को रात से तशबीह दी गई है कि अगर अल्लाह चाहता तो हमेशा के लिए रात ही रखता और रोशन दिन ना निकलता। फिर सूरज को हमने इस पर दलील किया कि सूरज ही साये को दूर करता है। जब सूरज गुरूब हो जाए तो इसी वजह से अंधेरा छा जाता है और दिन की बजाय रात आ जाती है। यानी सूरज ही तारीकी और रोशनी का सबब है। फिर हमने साये को अपनी तरफ समेट लेते हैं। तुलुए शम्स के वक्त साये लंबे होते हैं, और जैसे जैसे सूरज ऊपर आता है तो साये भी सिमटना शुरू हो जाते हैं। ये अमल ऐसा ही मालूम होता है जैसे सायों को खींचा या समेटा जा रहा है। और वही है जिसने रात के अंधेरे को तुम्हारा ओढ़ना बनाया और नींद को आराम के लिए बनाया और दिन बनाया उठने के लिए कि असूल माश के लिए कोशिश करने के लिए। और वही है जो हवाओं को रहमत बारिश से पहले बिशारत बनाकर भेजता है, बारान रहमत से पहले ठंडी हवाएं चलाता है जो बारिश की खुशखबरी देती हैं। और हमने आसमान से पाक पानी उतारा। बारिश का पानी ना सिर्फ फजाई आलूदगी को खत्म करता है, बल्कि वो जमीनी आलूदगियों को भी समुंदर तक बहा ले जाता है। वहां से बुखारात बनकर दोबारा आलूदगी से पाक पानी फजा में पहुंचकर बादलों की शक्ल इख्तियार कर लेता है। बारिश इसलिए भी बरसाई जाती है कि इससे हम मुर्दा जमीन को जिंदा करें और इसे पिलाते हैं अपनी मखलूक में से जो चौपायों और इंसानों को। यानी यही बारिश का पानी जानदार मखलूक की जिंदगी को भी ना सिर्फ बरकरार रखता है, बल्कि इसके अंदर फाजल मादों और खतरनाक फजलों के अखराज का भी सबब बनता है। और मजीद ये कि पानी जानदार मखलूक के लिए के अंदर इस्तेमाल होकर ख़त्म भी नहीं होता, बल्कि जानदारों के अंदरूनी निज़ाम को चलाने का भी सबब है। और इस पानी को हमने इनके दरमियान गर्दिश में रखा हुआ है। यानी यही जिसे पानी का चक्कर कहा जाता है कि आसमान से पानी नाज़िल हुआ, ज़मीनी और हैवानी हयात का सबब बनकर, और इसमें मौजूद आलूदगियों को ख़त्म करके खुद ख़त्म होने की बजाय बुखारात की शक्ल में आसमान की तरफ उड़ जाता है और दोबारा बादलों का सबब बन जाता है, ताकि वो नसीहत हासिल करें कि निज़ाम कुदरत किस तरह खुदकार तरीके से चल रहा है। लेकिन अक्सर लोग कुफर ही करते हैं। जिस तरह पानी हर जगह नाज़िल किया जाता है, इसी तरह अगर हम चाहते तो हर बस्ती में एक डर सुनाने वाला भेज देते। आमतौर पर एक कौम के किसी मरूफ या मरकजी शहर या बस्ती पर ही रसूल भेजे गए हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन कुफार का कहना ना माने, और आप इस कुरान से इन कुफार के साथ बड़ा जहाद करें। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कबाइल की नाराजगी की वजह से शदीद दबाव का शिकार है, इसकी परवाह न करें और पूरी दिलजमी और हिम्मत से दावत हक की तबलीग का फरीज़ा अदा करते रहें।
तमाम तर मुश्किलात और तकालीफ को बर्दाश्त करते हुए फरीज़ा पैगम्बरी अदा करने को भी बड़ा जहाद करार दिया गया है। ईमान और कुफर की मिसाल देते हुए, और वही है जिसने वो दो समंदर जारी किए, ये मीठा है जायकेदार, ये कारी है कड़वा, और इन साथ बहने वाले समंदरों के दरमियान एक पर्दा और रुकावट हायल की हुई है कि वो साथ बहने के बावजूद आपस में हरगिज़ नहीं मिलते। और वही है जिसने इंसान को पानी से बनाया। जिस तरह पानी तमाम अमूर अंजाम देने के बाद भी ख़त्म नहीं होता, इसी तरह इंसान भी ख़त्म ना होने वाला जानदार है। तो इस अल्लाह ने इसके नस्ब, ख़ानदान और ससुराली रिश्तेदारों को बनाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब तमाम कुदरतों वाला है कि सारे इख्तियार तो अल्लाह ही को हासिल है, मगर ये कुफार अल्लाह को सिवा ऐसों की इबादत करते हैं जो ना इन्हें नफ़ा पहुँचा सकते हैं और ना ही नुकसान। और कुफार अपने रब की मुखालफत में एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने नहीं भेजा मगर बिशारत देने वाला और डर सुनाने वाला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनसे कह दें कि मैं इस दावत हक देने पर कोई उजरत नहीं मांगता, सिवाय इसके कि जो चाहे अपने रब की तरफ राह इख्तियार करे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अल्लाह जिंदा पर भरोसा रखें जिसे कभी भी मौत नहीं आनी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अल्लाह की हम्दो तस्बीह करते रहे, और वही अपने बंदों के गुनाहों की खबर रखने के लिए काफ़ी है, जिसने आसमानों और ज़मीन को और जो भी इनमें है इसे 6 दिनों में बनाया है, फिर वो अर्श पर मुतमक्कन हो गया। यानी आसमानों और ज़मीन के तमाम अमूर को अपना कब्जा कुदरत में ले लिया, और कोई चीज़ ना छोटी और ना ही बड़ी इससे छुपी रह गई। और यही निज़ाम एक खुदकार तरीके से हर इंसान की हर हरकत को नोट कर रहा है। वो अल्लाह सब कुछ जानने के बावजूद रहमान है, तो किसी जानने वाले से इसके बारे में पूछ लो। यानी ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार करो जिनकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ दोस्ती हो, ताकि तुम्हें भी मार्फत इलाही हासिल हो सके। और जब इन कुफार से कहा जाता है कि सजदा करो रहमान को, तो वो कहते हैं कि रहमान कौन है, क्या हम इसे सजदा करें जिसके लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें हुक्म दे रहे हैं। और इस हुक्म से वो कुफार और बिदकते हैं। ये तर्जमा आयत सजदा का है। आगे हिस्सा ये इसका इख्तितामी पैरा है इस सूरत का, इब्तिदा हो रही है। बड़ा बाबरकत है वो जिसने आसमान में बुरज बनाए, शैतान से आसमानों की हिफाजत के लिए चौकियाँ, और एक कायनात से दूसरी कायनात में दाखिल होने के रास्ते, जिसे आजकल ब्लैक होल कहा जाता है। और इसमें एक चिराग रोशन सूरज रख दिया, और एक रोशन चांद यानी सूरज खुद मुख्तलिफ अवामल के साथ जलता हुआ बनाया, जो न सिर्फ हरारत का बायस है बल्कि इससे रोशनी भी हासिल होती है, जबकि चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती, क्योंकि चांद भी सूरज की इस पर मुनक्कश शुदा शुआओं की वजह से रोशन नजर आता है। चांद की सतह भी ज़मीन से मिलती जुलती है, और वही है जिसने दिन और रात को एक दूसरे के पीछे आने वाला बना दिया है, इसके लिए जो गौर करना चाहे या शुक्रगुजारी करना चाहे। यानी जो अल्लाह के मखसूस बंदों में शामिल होना चाहे, इसे इसके लिए कोशिश भी करनी चाहिए। नेक बंदों की निशानियां क्या हैं? ये जैसे सूरह अल मोमिनून की इब्तिदा में नेक बंदों की निशानियां बताई गई थी, ये अब इस सूरत के आखिर में बताई जा रही हैं। रहमान के बंदे वो हैं जो ज़मीन पर आस्तगी से चलते हैं, इनकी चाल में आजी और इंकसारी होती है, और जब इनसे जाहिलाना बहस करते हैं तो इनको बस कह देते हैं सलाम, और वो अपने रब के लिए रात गुजारते हैं सजदे और क़याम करते हुए, और कहते रहते हैं ऐ हमारे रब, हमसे जहन्नम का अजाब हटा दे, बेशक इस अल्लाह का अजाब आकर रहेगा, बेशक वो जहन्नम आरजी और मुस्तकिल ठिकाने के लिए बहुत बुरी जगह है। और वो खर्च करते वक्त ना असराफ करते हैं और ना ही बखीली करते हैं, बल्कि इसके दरमियान इतदाल पर रहते हैं, और वो अल्लाह के सिवा किसी और को माबूद नहीं पुकारते, और ना ही ना हक कत्ल करते हैं ऐसी जान को जिसकी अल्लाह ने हुर्मत रखी है, और ना ही ज़िना करते हैं, और जो ये करेगा वो सज़ा पा कर ही रहेगा, और क़यामत के दिन इसका अजाब बढ़ा दिया जाएगा, और वो हमेशा इसी जिल्लत में ही रहेगा, सिवाय इसके कि जिसने तौबा कर ले। या अल्लाह में तौबा।
اور ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں میں بدل دے گا، اور اللہ غفور ہے، رحیم ہے۔ اور جس نے توبہ کی اور نیک اعمال کیے تو بے شک وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، اور وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، اور جب وہ کسی بےہودگی سے گزرتے ہیں تو عزت سے گزر جاتے ہیں۔ یہ اہل ایمان لوگ کی صفتیں بیان ہو رہی ہیں۔ اور جب انہیں رب کی آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو ان پر اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے، بلکہ غور و فکر کرتے ہیں اور ان پر مکمل عمل بھی کرتے ہیں۔ اور وہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں بیویوں اور اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما، یعنی ان کی وجہ سے ہمیں کسی آزمائش کا شکار نہ ہونے دینا، اور ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی ہمیں بھی پرہیزگار رکھ اور ہماری بھی بچوں کو بھی پرہیزگاری عطا فرما۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے صبر کے بدلے جنت میں اونچے اونچے محل ملیں گے، اور وہاں ان کا سلام کے ساتھ احترام کیا جائے گا۔ وہ اس جنت میں ہمیشہ رہیں گے، اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کی بہت ہی اعلیٰ جگہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں، اے کافرو، میرے رب کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں کہ اگر تم اللہ کو نہیں پکارتے، تم نے تکذیب کی ہے کہ جس کی سزا تمہیں لازماً مل کر ہی رہے گی۔ اس صورت کے ساتھ ہی یہ قرآن پاک کی چوتھی منزل کا مطالعہ بھی اختتام کو پہنچا۔ اب اگلی صورت 5ویں منزل میں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔